we know that God has saved us for a purpose. तो हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें कोई मकसद के लिए हमें बचाए रखा है, उद्धार दिया है हमें। If we look at so many people around us, God has chosen you and me to have repentance and faith in Him. तो इतने सारे लोगों के बीच में परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है ताकि हमारे अंदर पश्चाताप हो और हम उनके परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास रखें। Why He chose you and me, we don't know. It is God's tremendous mercy over each one of our lives. हमको और आपको परमेश्वर ने क्यों चुना है ये हमें पता नहीं है। ये इसलिए कि परमेश्वर की बहुतायत की कृपा और दया जो है हमारे ऊपर है। So many people are just enjoying themselves on Sunday and taking after this. They have no interest in God, but God has put an interest, a desire in our heart for Him. Your voice is breaking, I think. Hello. So many people have lost, they have no interest in God, but God has put an interest for God in our lives. तो बहुत सारे लोग जो है वो खो गए हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमारे जीवन में उनके लिए एक दिलचस्पी दिया है। Now, God has forgiven all our past sins. परमेश्वर ने हमारे सारे जो पुराने पाप है उसको क्षमा किया है। He has cleansed us completely. He doesn't remember any sin that we have done. तो हमें पूरी तरह से शुद्ध करते हैं और हमारे कोई भी जो पाप हमने किए उसे कदापि याद नहीं करते। People may remember the sin, but God, as far as God is concerned, He said, I don't remember any of your sins. You are to me, like to me, absolutely a holy person. तो लोग जो है पापों को याद रख सकते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे कोई भी पापों को याद नहीं करता और तुम लोग मेरे लिए एक पवित्र संत के समान हो। Now, once you have been born again, you have become a child of God. Now you must live for me. अभी तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तुम परमेश्वर के संतान हो गए हो, तो तुम्हें मेरे लिए जीना चाहिए। God has put His love by the Holy Spirit into our lives. परमेश्वर ने उनके प्रेम को हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया है। So we see in the book of 1 Thessalonians chapter 4, हम देखते हैं पहला तस्सलोनी 4 अध्याय verse 9. 9वां वचन। Now, as to the love of the brethren, we have no need for anyone to write to you, for you yourselves are taught by God to love one another. किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। And verse 10 says, for indeed you practice it towards all the brethren who are in Macedonia, but we urge you to excel still more. 10वां वचन, और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, पर हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ। See, when we get born again, the Holy Spirit comes into our life and we are filled with the love of God. और जब हम नया जन्म पाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भरता है और परमेश्वर के प्रेम से हम भर जाते हैं। And God speaks about loving one another, और परमेश्वर हमसे एक दूसरे से प्रेम रखने के विषय में बात करते हैं, especially the children of God. खास करके परमेश्वर के बच्चों के साथ। And in this world, there is no love. इस दुनिया में कोई प्रेम नहीं। People love people when they love them back. लोग एक दूसरे से तभी प्रेम करते हैं जब उनको वापस ही में प्रेम मिलता हो तो। But God has put His love, which is the agape love, in our heart. तो परमेश्वर ने उनके अगापे प्रेम को हमारे हृदय में डाला है। And what is this agape love? That is a love without any condition. अगापे लव प्रेम क्या है? वो ऐसा प्रेम है जिसमें कोई नियम नहीं होते। The conditions, the Lord, because God loved us just as we are, when we were yet sinners, Christ died for us. तो परमेश्वर ने, जब हम पापी थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और यीशु मसीह जो है उस क्रूस पर मर गए हमारे लिए। So when we love other people, it is without conditions because God so loved us. तो हम जब दूसरे लोगों से प्रेम रखते हैं तो वो बिना कोई शर्त के होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इतना प्रेम हमसे किया है। And that is because the Holy Spirit is there in our life. It says in verse 9, the Holy God Himself teaches us to love one another. तो ये इसलिए कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है और प्रभु आप ही हमें प्रेम करने के लिए सिखाते हैं। Why love one another? Because we are in the family of God. क्यों एक दूसरे से प्रेम रखना है? क्योंकि हम परमेश्वर के परिवार में हैं।
The family of God is small, but God teaches us to love one another and to pray for one another. और परमेश्वर का परिवार बहुत छोटा है, परंतु परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। And the Apostle Paul says in verse 10 that the Thessalonians, even though they were idol worshippers earlier, they were practicing it to all the brothers who were there in their country. तो ये थिस्सलुनीके के जो कलीसिया है, उनको वो जो है मूर्ति पूजा करने वाले थे, और ये जो उनके अभ्यास है, उनके जो भाई लोग हैं, उनको भी वो सिखाते थे। But he was saying that you brethren, you must excel, it must be more and more excellent in this love. तो ये वो कहते हैं, हे भाइयों, ये जो प्रेम में तुम्हें और भी बढ़ते जाना है। Because you know what is love in 1 Corinthians chapter 13? Love is not a feeling, but it is a doing. Patience, kindness, and expecting the best from each other, forgetting the past. All these is love. तो हमें पता है प्रेम क्या है। 1 कुरिन्थी 13 अध्याय में इसके विषय में लिखा हुआ है। ये वो एक भावना नहीं है, परंतु वो करके दिखाना है। संयम के द्वारा, दया, करुणा, सारी चीजों के द्वारा हमें करके दिखाना है। And that is why the Apostle Paul said we have to grow in love. इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हमें प्रेम में बढ़ना है। After becoming born again, we have to grow in love. नया जन्म पाने के बाद हमें प्रभु में, इस प्यार में बढ़ना है। And it is quite possible that we may not grow at all in love. और ये हो सकता है कि हम जो इस प्रेम में बढ़ ही ना पाए। Because then if we keep sin in our life, we will be selfish and proud. Then there's no love in our heart towards our fellow brothers and sisters. अगर हमारे जीवन में हम पाप को रखते रहेंगे, तो हम जो है घमंडी और स्वार्थी बन जाएंगे, और हमारे जो संग में रहने वाले भाई बहनों से कोई प्रेम हम रख नहीं पाएंगे। We have no love because we are proud and selfish. हमारे अंदर कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि हम घमंडी हैं और स्वार्थी हैं। All proud and selfish people have no love in their heart. जितने भी घमंडी और स्वार्थी लोग हैं, उनके हृदय में कोई प्रेम नहीं। The proverb says, whenever you go to a selfish man's house to eat, please don't eat too much because his heart is not with you. और नीति वचन में लिखा हुआ है कि जब भी तुम कोई स्वार्थी मनुष्य के घर में खाना खाने जाओ, तो ज्यादा मत खाओ, क्योंकि उसके हृदय में आपके लिए कुछ नहीं है स्वार्थीपन के अलावा। There's no love in his heart when he gives you food. उसके हृदय में कोई प्रेम नहीं है जब वो खाना आपको परोसता है तब। But with the child of God, there is always love, and we must grow in love, and what we say is out of love. और एक परमेश्वर के संतान के लिए हमेशा वो प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। उस प्रेम में हम बढ़ना चाहिए। हम जो कुछ भी कहें, वो सब कुछ प्रेम के द्वारा होना चाहिए। There is no hypocrisy, there is no dishonesty. वहां पे कोई पाखंडीपन नहीं है, पाखंडीपन नहीं है। God's children should be increasingly be honest and pure. जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उन्हें हमेशा ज्यादा ईमानदार और शुद्ध होने चाहिए। So this is what the Apostle Paul said, that he was excelled in love more and more. यही प्रेरित पौलुस कहते हैं कि आपको इस प्रेम में बढ़ते जाना, Especially towards the believers. पाकडा आणायला पाहिजे रे, पण ते बच्चे ठेवलं ना रात्री सारे गर्दीने बर्दीने चोर. Mute that person who's talking in between. Please mute. He doesn't know. He's not muted. And then we have to have an aim and ambition in our life once we become believers. तो एक विश्वासी बनने के बाद हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। If we have no ambition, our ambition should become like Jesus. तो अगर हमारे जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है, तो हमारा लक्ष्य यीशु मसीह के समान बनना होना चाहिए। So, but that is a little vague term. I want to become like Jesus. वो एकदम साधारण शब्द है बोलना कि मुझे यीशु मसीह के समान बनना है। We must be very specific in our life. हमारे जीवन में हमें एकदम व्यक्तिगत रूप में इस बात को लेना है। And the Apostle Paul tells them what this specific thing is. और प्रेरित पौलुस कहते हैं उनको ये जो खास बात क्या है। Verse 11. 11 वचन। It says, make it your ambition to lead a quiet life, to attend to your own business and work with your own hands, just as we commanded you. 11 वचन, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। So the Apostle Paul gave a commandment to all these different churches, all these people who are idol worshippers. Now, from now on, don't live as you lived before. Live a different lifestyle altogether.
तो प्रेरित पौलुस जो है इन सारे कलीसियाओं को एक आज्ञा देते हैं, जितने भी मूर्ति पूजक है उनको बोलते हैं कि अभी जैसे तुम जीते थे वैसे मत जियो, एक बदलाव हुआ जीवन जियो। तो You must have an ambition. तुम्हारे जीवन में एक मकसद होना चाहिए। And what is the first part of it? और उसका पहला पंक्ति क्या है? To lead a quiet life. एक चुपचाप से जीवन जीना। Earlier, we used to live a very noisy life, talkative life. पहले हम बहुत आवाज वाला बड़बड़ करने वाला जीवन बिताते थे। As we come closer to the Lord, we must talk less and less and do more and more. जितना हम परमेश्वर के करीब आते जाते हैं उतना हमें बातें कम करना है और कार्य ज्यादा करना है। So people who talk a lot, they are not at all spiritual. जो लोग ज्यादा बात करते हैं वो आत्मिक है ही नहीं। So they keep on gossiping and talking about other people behind their back and discussing so many things that they are not supposed to talk. और वो बहुत सारी बातें करते हैं, गपशप करते हैं, दूसरे लोगों के पीठ पीछे बातें करते हैं, वो सारी बातें वो करने लगते हैं जो उनको कदापि करना नहीं चाहिए। But now we must make an ambition to be quiet. तो अभी हमें एक मकसद को हमारे जीवन में लेना है, शांत रहने की। And what does it mean to be quiet? For example, we have a Martha being quiet and Mary being very noisy and full of complaints. उदाहरण के तौर पे अगर हम ऐसे ले कि मार्ता जो है एकदम शांति से बैठी हुई है और मरियम जो है बहुत शिकायतों से और बड़बड़ कर रही है। They're doing the Lord's work, but lot of complaints. तो वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं परंतु बहुत सारी शिकायतें हैं। The mouth is not quiet because the heart is not quiet. उनके जो मुंह है वो शांत नहीं है क्योंकि उनका हृदय भी शांत नहीं है। The heart is very agitated. उनका हृदय पूरा हलचल से भरा हुआ है। The Lord says now you must learn to be quiet in your heart, and then your heart and your tongue also will not speak much. तो परमेश्वर कहते हैं अभी तुम्हारे हृदय को एकदम शांत रखना है। अगर तुम्हारा हृदय शांत रहेगा तो तुम्हारा जुबान जो है वो भी बातें नहीं करेगा, वो भी शांत रहेगा। There's no arguing and murmuring and fighting. वहां पे कोई विवाद नहीं होगा, कुड़कुड़ाना नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा। So in our homes, if we are the only believer in the house, you should be the person who will be quiet, who will never argue, never complain or not murmur. अगर आप अपने परिवार में अकेले हो जिन्होंने उद्धार पाया है तो आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो कभी भी लड़ते नहीं होंगे, विवाद नहीं करते होंगे, गपशप नहीं करते होंगे और शिकायत नहीं करते होंगे। All the people who complain and murmur, believers who complain and murmur are very carnal Christians. जितने भी विश्वासी जो कुड़कुड़ाते हैं और शिकायतें करते हैं वो सिर्फ नामधरा ही मसीही हैं। We see the Corinthian church, there's always argument, fighting all the time going on, disturbances going on. The Apostle Paul said that you are not at all spiritual, your spirituality is almost zero. तो कोरिन्थियों कलीसियों को देखकर प्रेरित पौलुस कहते हैं तुम्हारे बीच में हमेशा झगड़ा और लड़ाई चलता रहता है, इसका मतलब है तुम बिल्कुल भी आत्मिक हो ही नहीं, बिल्कुल शून्य बन चुके हो आत्मिकता में। But at the same time, they were doing all sorts of prophecies and having healings and miracles and all the other wonderful things are going on, but their spiritual life is almost zero. वही समय पे उनके जो सेवकाई में बहुत सारे चिन्ह, चमत्कार, भविष्यवाणी, बहुत सारे प्रचार, सब कुछ हो रहा था, फिर भी उनका जो आत्मिक जीवन था बिल्कुल शून्य था। Because there was sin in their life. क्योंकि उनके जीवनों में पाप थे। And what is the sin that they had? और वो पाप क्या था जो उनके जीवन में था? They were very proud and they were very selfish. वो बहुत ही घमंडी थे और बहुत ही स्वार्थी थे। And that is the cause of that. They just thought no end of themselves, did not listen to anybody, and because of that, they also fell into all sorts of immoralities. इसीलिए वो किसी की बात नहीं सुनते थे, अपनी मर्जी से सब करते थे और सारी अश्लील बातों में, व्यभिचार में वो लोग गिरने लगे। Why should we be quiet? हमें शांति से क्यों रहना है? So then we can hear the Lord speaking to us. ताकि हम परमेश्वर जो हमसे बातें करते हैं उस शब्द को हम सुन पाए। When we are talking a lot in our life, we don't know, we cannot hear the Lord speaking, we cannot hear what other people are speaking. We only think that what we are speaking is right. तो जब हम ज्यादा बातें करते रहते हैं तो हमसे परमेश्वर क्या बात करने की कोशिश करते हैं वो नहीं सुन पाते, दूसरे लोग हमसे क्या बात करने की कोशिश करते हैं वो नहीं सुन पाते, क्योंकि हम जो है हमारी सोच है उसको ही सही समझ के चलते हैं। And when we are speaking such a lot, we don't know sometimes what we are speaking also. और हम इतने सारे बातें करते हैं, कभी कभार हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या बात कर रहे हैं। And the Bible says when there is a lot of speaking and lot of words, sin is not lacking. तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पे ज्यादा बातें होती है वहां पे पाप जो है रुका नहीं है।
So that is why we have to learn to be quiet, because we are very talkative people. Now we have learned, as we grow in our spiritual life, we have learned to be quiet. तो इसलिए हमें बहुत शांति से रहना सीखना है। हम बहुत ही बातचीत करने वाले लोग थे, परंतु जैसे ही हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, तो हमें सीखना है चुपचाप रहने के लिए। And then we can hear the Spirit's voice in our heart. फिर हम उस आत्मा की आवाज को हमारे हृदय में सुन सकते हैं। In Isaiah chapter 30 verse 21, यशायाह का किताब 30 अध्याय उसका 21 वाक्य 21 it says, and your ears will hear a word behind you saying, behind you, this is the way, walk in it, whenever you turn to the right or to the left. और जब कभी तुम दाहिनी व बाई ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। So whenever we are quiet, God can speak to us. और जब भी हम शांति से बैठते हैं, तो परमेश्वर हमसे बातें कर सकते हैं। God speaks to us when we are so agitated and so angry, nothing, but we have to quieten ourselves. तो परमेश्वर हमसे बात नहीं कर सकते जब हम बहुत ही हलचल में रहते हैं, बहुत ही चिड़चिड़ाहट में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो हमें अपने आप को शांत रखना है। Even if two people are talking, maybe a husband and wife, or your children, you're talking to your children, then the children are angry and there's no point in telling them what to do. और जब भी भाई पति या पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं, या आप अपने बच्चों से बात करते हो, अगर बच्चे बहुत ही गुस्से में हैं, तो उनसे बात करने का कोई लाभ नहीं होता है तभी। That is not the time to talk, because then they will not listen at all to what you're just wasting all your words while speaking. तो वो बात करने का कोई समय नहीं है, क्योंकि आप जो भी उससे बातें कर रहे हो, वो कदापि समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ आपके शब्द ही सुनता है। Let them quieten down for some time, and then you can speak a few words to them. उनको थोड़ा पहले शांत होने दो, उसके बाद आप उनसे कुछ शब्द बातें कर सकते हैं। So people hear, when we think that people are going to hear when we keep on talking and talking, they don't hear at all. और जब हम सोचते हैं, जब हम बातें ही बातें करते जाएंगे, लोग हमारी बातों को सुनते हैं, असल में वो हमारी बातों को सुनते ही नहीं है। There was one sister whose children were never listening to her. एक बहन थी जिनके बच्चे उनकी बातें बिल्कुल भी सुनते ही नहीं थे, And she was getting very angry with them because whatever she was saying, they were just ignoring her. तो वो इतने गुस्से में आ गई थी, क्योंकि जो कुछ भी वो बहन उनके बच्चों से बातें करती थी, वो बिल्कुल नजरअंदाज कर देते बच्चे। Then God told her, don't speak for more than 1 minute. तो परमेश्वर ने उसे कहा कि 1 मिनट से ज्यादा बात मत करो। So whenever she used to tell something, she used to say for 1 minute and stop. और फिर वो जब भी बातें करती थी, तो फिर 1 मिनट के लिए बातें करके फिर चुप हो जाती थी। And the children found out that she was not talking this. Brother, your voice is breaking. Hello? So, the children heard that she was speaking very less. और फिर बच्चों को समझ में आया कि मम्मी बहुत ही कम बात कर रही हैं अभी। And then they began to listen. और फिर वो उनकी बातों को सुनने लगे। And they began to tell her, Mummy, speak something more, tell something more, tell something more to us. तो वो उनके मम्मी से बोलने लगे बच्चे आके कि मम्मी और भी ज्यादा बात करो, थोड़ा और बात करो। So when she started speaking less and she started becoming quiet, her words began to have some more effect. और जब वो कम बातें करने लगी और शांति से रहने लगी, तो उसके जो शब्दों में गंभीरता होने लगी उन बच्चों को। When we become Christians, we are people who like to talk a lot. तो जब हम मसीही बनते हैं, तो हम ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत बातें करना पसंद करते हैं। We use a lot of loose words and unnecessarily keep on talking to different type of people, all a lot of loose things. और हम जो है बेकार की शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें करते हैं। Both on the telephone and even now on WhatsApp. और व्हाट्सएप के द्वारा भी और टेलीफोन के द्वारा भी हम बात करते हैं। The Holy Spirit tells us now you've learned to be quiet. और पवित्र आत्मा हमें कहते हैं कि अभी तुम शांति से रहना सीखो। People who are quiet are considered to be wise. और जो लोग शांति से चुपचाप रहते हैं, उनको ज्ञानी समझा जाता है। People who talk a lot are very foolish. और जो लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं, वो मूर्ख होते हैं। And we have to be careful of people who talk a lot. और हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो लोग ज्यादा बात करते हैं। For example, a salesman who comes to sell something to your house. उदाहरण के तौर पे अगर कोई कुछ सामान बेचने वाला आदमी बेचने आता है हमारे घर में, How much they talk? इतना वो बात करते हैं। They talk and talk, and that product of theirs is very good.
वो उनके जो जो प्रोडक्ट उन्होंने लाया है उसके बारे में इतना बात करते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है, ऐसे हमें बताने की कोशिश करते But हैं। the product may not be very good. The product is very good. They will, the real good company will, they will not talk much about it. They will say, demonstrate what it is, the product is good. तो उनका जो चीज़ वो लाते हैं, सामान वो इतना अच्छा नहीं रहता। अगर वो सामान इतना अच्छा रहता तो बहुत अच्छी कंपनियाँ उसको रखती और उसको उसके बारे में पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको देती, ऐसे घर पे आके बेचने की ज़रूरत ना होती। So the Apostle Paul is telling us, learn to be quiet. तो प्रेरित पौलुस हमें सिखाते हैं कि जो शांति से रहना सीखो। Reduce your talking time. तुम्हारा जो बात करने का समय है उसे कम करो। Now we have the phone, we have no talk time. तो अभी हमारे फ़ोन में जो है बहुत टॉक टाइम मिलता है। I remember maybe about 25, 30 years, the mobile phone was not there. तो मैं अभी भी याद करता हूँ कि 25-30 वर्ष के उस समय में मोबाइल फ़ोन नहीं था। At that time we could use the public phone and to put 1 rupee inside and speak for about 1 hour also. और वहाँ तब क्या होता था, पब्लिक फ़ोन में जाके 1 रुपया उसके अंदर डालने से 1 घंटे तक बात कर सकते थे। Local calls. वो जो है वहाँ पे जो अलग लोकल जगह में। So then the telephone company noticed that lot of ladies and young girls are keeping on talking for a long time with just only 1 rupee. तो टेलीफ़ोन कंपनियों ने इस बात पर गौर किया कि जो महिलाएँ हैं और जो जवान बहनें हैं, वो 1 रुपए में 1 रुपया डालकर बहुत घंटों तक बहुत सारी बातें करते थे। So they reduced the talk time to 3 minutes. और फिर उन्होंने वो बात करने के समय को 3 मिनट कर दिया। So if you exceed 3 minutes, you have to pay more money for every 3 minutes. तो हर 3 मिनट में अगर आपको ज़्यादा बात करनी है तो और 1-1 रुपया आपको जमा करने होंगे वहाँ। So with the result, the conversation also began to reduce और उसकी वजह से क्या हुआ, वो चर्चा भी कब घटने लगी, because then the talk time will get over. क्योंकि जो बातचीत करने का समय खत्म हो जाता था इसलिए। So people used to take a note how long you have spoken. और फिर लोग आके इसका लेखा लेते थे कि कितना समय तक आपने बात किया है। Because we not only spoil ourselves, we spoil other people also. क्योंकि हम सिर्फ अपने आप को खराब नहीं कर रहे, हम दूसरे लोगों को भी खराब करते हैं। So let us have this ambition. Each one of us learn to be quiet. तो ये जो मकसद है हमारे हर किसी के जीवन में हम पाए और हम सीखें कैसे शांति से चुपचाप रहना है। We must, but not be quiet, but not when we have to just talk in conversations. Can you repeat brother? Sorry. In praising God, we must not be quiet. तो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने के लिए हमें शांति से नहीं रहना है। But when we are discussing things, we learn to be quiet. और जब हम कोई चीजों की चर्चा में रहते हैं तो हमें शांति से रहना सीखना है। Then we will hear what God has to speak, and they will hear what others have to speak. और फिर हम सुन पाएंगे परमेश्वर हमसे बात क्या करना चाहते हैं और दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं। Second aspect is learn to be quiet. That should be our ambition. And second is 1 Thessalonians chapter 4 verse 11. पहला बात ये And to attend to your own business. Yeah. And to attend to your own business. और पहला बात ये है कि हमें चुपचाप रहना सीखना है और दूसरा बात ये है कि हमें अपने कामकाज से मतलब रखना है। They say in this world, no, mind your own business. यहाँ पे जैसे कि दुनिया में कहते हैं लोग कि अपना काम करो सिर्फ। That comes from the Bible. वो बाइबल से ही आता है। We must not try to poke our nose in other people's affairs. तो हमें दूसरे लोगों के जो कामकाज है उसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। God has given us a certain job to do. Please do it unto the Lord, and you should not interfere in other people's work. तो परमेश्वर ने आपको कोई काम दिया है करने के लिए, तो आप उस काम को सही तरीके से करो, दूसरे लोगों के जीवन में दखल ना दो। We have a great interest to find out what is happening to other people and what is there, and find all the great curiosity. तो हमारे अंदर बहुत बड़ी आकांक्षा और दिलचस्पी रहती है कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, जानने की एक दिलचस्पी रहती है। Saying that curiosity kills the cat. Curiosity killed the cat. जो एक कहावत है कि जो आकांक्षा है, जो दिलचस्पी है, वो जो बिल्ली है उसको मार देती है।
The cats, when they come to the house, they want to go and put their head into anything. तो जब बिल्लियाँ घर में घुसती हैं तो वो कहीं भी जाकर किसमें भी अपना सर डुबाना चाहती है। So, and then what happens? Sometimes the milk is hot, then they burn their mouth. तो क्या हो जाता है, कभी दूध जो है वो गर्म रहता है, जैसे ही वो मुँह डालती है उसमें तो उनका मुँह जो है वो जल जाता है। There are people who like information, want to hear. तो ऐसे लोग हैं दुनिया में कि जो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस बातों को ज़्यादा जाँचने वाले। And they are more bothered about other people than about their own life. तो वो दूसरे लोगों की चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं खुद के जीवन से ज़्यादा। The Philippians chapter 2, it says, the Bible, the Apostle Paul tells the Philippians, work out your own salvation there in trembling. और फिलिपियों दूसरे अध्याय में प्रेरित पौलुस कहते हैं खुद के उद्धार के लिए काम करो गिड़गिड़ाते हुए। If we try to bother about other people when they are not interested, then we waste our time. अगर हम दूसरे लोगों में दिलचस्पी दिखाने की कोशिश करते हैं जबकि वो दिलचस्प है ही नहीं, तो हम अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। You have to listen to the Holy Spirit says, now it's enough. Now don't talk more, don't talk with more. When that person is interested, then you तो हमें पवित्र आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए कि अभी ज़्यादा बातें मत करो, जबकि वो जो मनुष्य है वो दिलचस्पी नहीं दिखाता है, जब उसको दिलचस्पी आएगा तब बात करो। see, God has drawn a boundary for each one of us. तो परमेश्वर ने हम हर एक किसी के लिए एक सीमा रखा है। We must not just go and find out information and advice to other people. तो हमें जाकर दूसरे लोगों की जानकारी या उनको उपदेश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। We will neglect our own life. क्योंकि हम अपने जीवन को फिर नकार देते हैं। And what the Holy Spirit wants you to concentrate on your own life that it may grow. पर पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम अपने जीवनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें ताकि हम बढ़ पाएँ। So that our lives can be an example to others. ताकि हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए एक आदर्श का कारण बने। There are so many people who want to know what is happening in other person's life, what news is there, what is. Brother, your voice is breaking. Network, I think. Hello. Yeah, yes, Can brother. you? The people ask what the people. I couldn't hear, brother. Hello. Yes. Ask all sort of questions. तो लोगों के मन में दूसरे लोगों के जीवनों के लिए बहुत सारे सवाल रहते हैं। Cannot hear, brother. Can't hear you, brother. Sorry. Hello. We had a. Hello. Yes, Yes. brother. Yes. We had a sister in church. Brother, your voice is breaking and could not understand only. It is showing your network is slow. It's showing. Others can hear. Same problem, your I think you can switch up your Voice is video. breaking? Yeah, your voice is breaking. You can switch up your video, then you will get good internet. No. Hello? Yeah, now it is okay, I think. Okay. So, investor. Yes. No, brother, it's still breaking. Hello? Hello. Can you hear me? A little break is there in the voice. Okay. Now I can hear, I think. It is still breaking now? A little better.
Can you hear? No, 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 brother. Hello. Yes, brother. Okay. Still not clear. Disconnect and come. Okay. 3, 3, 4. Hello. Hello. Can you hear me now? Yes, brother. Better now? Yes, brother. Okay. So we had a sister in our church who was more than 90 years old, तो हमारे कलीसिया में एक बहन थी जो 90 वर्ष से अधिक थी। and she was almost blind and almost deaf. तो वो आंखों से अंधी थी और सुन नहीं पाती थी। She had a neighbor who used to help her very much. और उनकी एक पड़ोसी थी जो उनको बहुत मदद करती थी। To bring for and all that. Your voice was still breaking little. Hello. Yes. Oh, हाँ, she used to buy her groceries, etc. तो उनके लिए जो महीने भर का जो सामान वगैरह है जो लाके देती थी उनको। But she had a very inquisitive nature. पर उसका जो स्वभाव था बहुत ही चंचल वाला था। When somebody used to come to the house, she used to ask, who came to your house? अगर उनके घर में कोई आता था तो वो आ जाके पूछती थी आपके घर में कौन आया था? She used to tell, somebody from the church came. और तो वो कहती थी कि तो आप कलीसिया से कोई आया था। Then she said, did they give you any gifts? और वो पूछती थी कि आपको कोई तोहफा उन्होंने दिया? Hello? यस ब्रदर। She said, yes, she gave. फिर वो कहती थी हाँ ये दिया है। She said, what is a gift? फिर वो पूछती थी कि वो तोहफा क्या था? Then you say, she gave some money. तो वो कहती थी कि मुझे कुछ पैसे दिए उन्होंने। Then she'll ask, how much money? और फिर वो पूछेंगी कि कितना पैसा? Then she used to get fed up. Don't ask all these questions, so much detailed question. और फिर वो परेशान हो जाती थी और उससे कहती थी इतने सारे सवाल मत पूछा करो। So people also get fed up when you keep on asking so many questions. तो लोग भी जो है बहुत ही परेशान हो जाते हैं जब उनको आप बहुत सारे सवालें करने लगते हैं तभी। If you don't Brother, listen up, brother, your voice is very much not fluctuating. Some network issue is there, I think. It's showing yellow something. Hello? Hello? Yes, brother. Is it better? Yes. When we concentrate upon our own spiritual life, then we make a lot of spiritual progress. और जब अपने आत्मिक जीवनों पर हम ध्यान देने लगेंगे तो हम बहुत सारी आत्मिक उन्नति कर पाएंगे। There are so many unimportant things in this world, in this world. इस दुनिया में बहुत सारे जो महत्वपूर्ण नहीं है ऐसे बातें हैं। There are in the spiritual life, there are many things that are important and many things not important. और इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है और ऐसी भी बातें हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। So getting a lot of knowledge about different topics in spiritual, going too much on the WhatsApp and Facebook, they are not important things. But the important thing is to do our own job and to spend meditation on the Word of God and prayer. These are the important things. तो
तो परमेश्वर के वचनों के ऊपर ज्ञान प्राप्त करना, उसमें ज़्यादा वो सब बातें, और फिर यूट्यूब और जो व्हाट्सएप है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारी आत्मिक जीवनों में हम बढ़ना और परमेश्वर के वचनों पर ज़्यादा ध्यान लगाते रहना। And to do daily responsibilities well. और हमारे जितने भी जिम्मेदारी है उन्हें अच्छे से निभाना। When we do that, the word of God will come to our minds and to our hearts, and we'll be able to speak with confidence that God has helped us. और फिर हम ऐसे रहेंगे तो परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में भर जाएंगे, और हम जब बातें करते हैं तो एकदम आत्मविश्वास के साथ बात कर पाएंगे। So then the Holy Spirit. Brother, your voice is breaking. I cannot hear you. No. Hello. Hello. Yes, brother. Uh, No, not good. Okay. So what I'll do now, I'll disconnect now. Some other brothers can start sharing what God has done in their life. So ये share करने का opportunity भी है, बाद में I will complete it. So we have this opportunity to share, brothers and sisters. So we will start. If anybody can start sharing. So प्रभु ने आपका जीवन में क्या काम किया है और क्या हमें। Can you hear? Yes, brother. We can hear. Okay. So we can ask Brother Baltaman, you can start something, and then others, Ratna Swami and all can start. Yeah, I thank God for that today. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। So yesterday I was listening that the testimony of Brother Kadiravan. तो कल मैं कदरवन ब्रदर का जो गवाही है वो सुन रहा था। So that is what one thing is. He mentioned that the Job life. तो एक बात उन्होंने बताया तभी अय्यूब के जीवन के बारे में। So he was a God-fearing man, and he was leave away from the evil. So this testimony God given, even he was in healthy, and also even in something happened wrong in his life also. तो वो बहुत ही अच्छा मनुष्य था और बुराई से बहुत दूर रहता था। ये गवाही जो है परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में, जब अय्यूब सेहतमंद था तभी भी दिया, और जब अय्यूब जो था बहुत ही बीमार हो गया था, बाद में जब विपत्ति आई उसके जीवन में, तभी भी यही गवाही परमेश्वर ने उसके विषय में दिया। So that is the one testimony even everyone should get that. तो ये एक गवाही हर किसी को पाना चाहिए। We should not say whenever everything is going smooth, then I can worship God, I can follow God. तो हम ये नहीं कहने का कि सब कुछ जब अच्छा चलता रहेगा तो मैं परमेश्वर का आराधना कर सकता हूँ और मैं परमेश्वर का पीछा कर सकता हूँ। But everything we don't know, because one thing I know that in Job life he don't know what is happening in backside. तो हमें नहीं पता क्या चल रहा है, और अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं कि उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, चल रहा है। Because he might think I am doing everything correct, I am living righteous before God, I am not doing anything wrong, but why it is happening something evil to me? तो वो ऐसे सोचता होगा मैंने सब कुछ सही किया है, परमेश्वर के लिए सब कुछ अच्छे काम किए हैं, कोई भी पाप नहीं किया, फिर ऐसे कुछ बुरी अवस्था मेरे जीवन में क्यों आई है। So the one testimony that even God also looking everyone, I can test, I can prove that this man, even though it is good, even though it is bad, he will still follow God. तो परमेश्वर हमारे विषय में एक गवाही दे सकते हैं, वो अच्छा हो या बुरा हो उसके जीवन में, तो भी वो जो है परमेश्वर का पीछा करने वाले और गवाही परमेश्वर दे सकते हैं। God can prove, God can use us and show to Satan,
even though he's good or even though he's bad, he will still follow God. तो परमेश्वर जो है शैतान को इस बात का प्रमाण दे सकता है, सबूत दे सकता है कि अच्छा उसके जीवन में चलता हो या बुरा भी कुछ भी इसके जीवन में चलता हो, तो भी ये जो मेरा संतान है मेरा ही पीछा करता है। Because everything we are receiving from God. क्योंकि जो कुछ भी हम पाते हैं वो परमेश्वर से पाते हैं। Even we read in the Lamentation chapter 3, there is no evil or good happening without knowledge of God. विलाप गीत 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कोई भी बुराई या अच्छा ही परमेश्वर को बिना जानकारी के हमारे जीवन में नहीं होती। So we have to, what in my life I am thinking that I have to accept everything what God is allowing in my life. तो मेरे जीवन में क्या करना है, मुझे परमेश्वर जिन बातों की भी मेरे जीवन में अनुमति देते हैं उन सारी बातों को मुझे स्वीकारना है। So the most of the time, what here today, we have to look up our own business. We don't want to interfere in other matters. और तो आज हमने क्या सुना कि हमारे जो काम काज है उसके बारे में हमें ध्यान देना है, दूसरों के जीवनों में, दूसरों के विषयों में हमें दखल नहीं करनी। So my responsibility is that I have to take care of my family. I have to bring my children in God fearing. तो मेरी जिम्मेदारी ये है कि मुझे अपने परिवार को संभालना है और मेरे बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करना है। I should not want to interfere in other children's or other matters. So if I am interfering that, then I will lose my the testimony of God. तो अगर मुझे दूसरे लोगों बच्चों के विषय में जाके दखल अंदाजी नहीं देनी, दूसरों के घर में क्या चल रहा है उस पे नहीं सोचना है, अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो मैं जो है मेरी जो गवाही है उसे खो दूंगा। So that brother also quoted that the abundance of word, the sin will not be there. तो जैसे ही ब्रदर ने एक वचन बोला कि जहाँ पे ज्यादा बातचीत होती है वहां पे पाप जो है दूर नहीं है। So I have to be cut out. I have to be quick to listen and slow to speak and slow to anger. तो मुझे जो है बहुत तुरंत सुनने वाला और धीमे से बोलने वाला, धीमे से क्रोध करने वाला होना है। Even brother yesterday told the whatever the current situation in my life, I am alone. I'm not able to walk, but this is not separating from God. तो जैसे ही कल ब्रदर ने कहा कि मैं अभी की जो परिस्थिति में मैं अकेला हूँ, मैं चल नहीं पाता, परंतु ये सारी जो परिस्थिति है मुझे परमेश्वर से, परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करती। But only one thing can be separated, that is my own sin. और एक चीज जो है मुझे परमेश्वर से अलग कर सकता है, वो मेरा खुद का पाप। So most of the time I used to think, what is the enemy for me? तो मैं बहुत बार ये सोचता हूँ मेरे लिए शत्रु क्या है। It is my own flesh only. वो मेरा खुद का शरीर है। Because this only I want to live for God. I want to whatever the things is happening me, I should not murmur or grumbling. But that time the evil, the flesh, it is converting me and tempting me. Then I am committing sin. और जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है तो मुझे उसमें कुड़कुड़ाहट करना, शिकायत करना नहीं चाहिए। अगर शरीर के अनुसार मैं उसके प्रलोभन में गिर जाता हूँ तो वो मुझे पाप की ओर ले चल रहा है। That's why we should not be mercy on our own self life. इसलिए हमें अपने खुद की जीवन या खुद की स्वयं के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखानी। We should not give any single or slow or any little bit mercy on our own self will. तो हमारे स्वार्थीपन के लिए हमें थोड़ा भी दया नहीं दिखाना है। We have to kill it. हमें पूरी तरीके से उसका घात करना है। That is what Jesus also mentioned in the Sermon of Mountain. वही यीशु मसीह ने भी बताया पहाड़ी उपदेश के समय। So this is the life God encouraged me from the yesterday, the message. I want to be a faithful for God. I should not want to murmur or grumbling in any situation. तो यही परमेश्वर ने कल के वचन के द्वारा मुझसे बात की, मुझे प्रोत्साहन दिया कि मुझे हमेशा परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरना है, कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है, कि शिकायत करना नहीं है जीवन में। Amen. Amen. I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए। God has called every person for a different purpose. तो परमेश्वर ने हर किसी को अलग अलग मकसद से बुलाया हुआ है। We have to know the purpose which God has called us. तो हमें उस उद्देश्य को जानना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है।
So it is easy to walk according to his ways. तो उसके मार्गों के अनुसार चलना हमारे लिए आसान हो जाएगा. We yesterday heard that brother Kadiravan told Romans 8:28. कल हमने कद्रिवन ब्रदर से सुना जो वचन है रोमियो 8 उसके 28 में. All things work together for good for those who called and love God. तो सारी जो चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो परमेश्वर को पुकारते हैं उनके लिए. You see, he cannot walk. हम देख पाए कि वो चल नहीं सकते. फिर भी he is telling these words. I faith in this word. God's word is true. तो फिर भी वो ये सब वचनों को कह रहे हैं और वो परमेश्वर पे इतना विश्वास करते हैं. परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है. He is living and loving for God. वो जी रहे हैं और परमेश्वर से ही प्रेम रख रहे हैं. We have heard about Job and Paul's difficulties. हमने कल अय्यूब और पौलुस के जो जीवन की मुश्किलों के बारे में सुना. But in our days we are seeing a living example for us. तो आज के हमारे दिन में हम जीवते हुए एक उदाहरण को देख पाते हैं. So that encourages. वो हमें प्रोत्साहन देता है. Then even small things also we are murmuring, complaining, quarreling. तो छोटे छोटे बातों के लिए भी हम कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं, बड़बड़ करते हैं. After his testimony that encouraging us not to murmur, not to complain anything. तो उनकी गवाही सुनने के बाद हमें ये प्रोत्साहन मिलता है कि हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, किसी भी बात को लेकर शिकायत नहीं करनी है. Praise God. Praise God. 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27. In a race, everyone runs, but only one person gets first prize. So run your race to win. To win the contest, you must deny yourself many things that would keep you from doing your best. An athlete goes to all this trouble just to win a blue ribbon or a silver cup, but we do it for a heavenly reward that never disappears. So I run straight to the goal with purpose in every step. I fight to win. I am not just shadow boxing or playing around. Like an athlete, I punish my body, treating it roughly, training it to do what it should do, not what it wants to do. Otherwise, I fear that after enlisting others for the race, I myself might be declared unfit and ordered to stand aside. So when this verse has been working in my life in the recent weeks and months, and God is telling me that I can share in the meetings, I can pray in the meetings, I can send WhatsApp messages to people, I can send Facebook messages to people, I can do all these things. But if I'm not disciplined in the area of my life, if I'm not disciplined in my eyes, in my tongue, in my ears, in my hands and my legs, in my stomach, I cannot enter the kingdom of heaven, because God wants me to be disciplined in my life. And for that, I need to ask God grace to be disciplined in my life. I need to long for a disciplined life. I need to work towards it. And it's by God's grace that I can get the disciplined life. Like Paul was such a great apostle. He had healed the sick, he had raised the dead, he had preached gospel, he had done so many churches, he had started so many churches, but yet he himself feared that he would be disqualified. That's why he always trained his body to do what it should do and not what it wants to do. In the same way, I believe that God loves every one of us, and God wants every one of us to be disciplined in our lives, in our waking up habits, in our sleep habits, in our eating habits, in our work habits, in our exercise habits, and everything. Amen. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, जो ब्रदर ने बोला है कि अपने काम से मतलब रखना है और कम बातें करनी है, अपने एंगर को कंट्रोल करना है। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आज वचन के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की। मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था, बहुत बातें करता था, लेकिन प्रभु ने आज वचन से बातें की, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। कल के भी मैं वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो ब्रदर ने एक बात कही उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। वो जब प्रभु में आए, उनको जो बाइबल पढ़ने के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया, मेरे पास तो बाइबल इतना पढ़ा रहता था, लेकिन मैं कभी वो पढ़ने के लिए कभी अपनी दिलचस्पी नहीं था, जस्ट एक रूटीन के लिए मैं पढ़ता था। लेकिन ब्रदर ने वो जो बताया, उन्होंने जब प्रभु को स्वीकार किया, तब वो
कितना छुपके छुपाते हुए, पेरेंट्स से डर के, लोगों से डर के, लेकिन वो बाइबल पढ़ते थे और इतना प्रभु के वचन से प्रेम करते थे। मैं कल के वो ब्रदर के वो बातों से इतना शर्मिंदा हुआ। मेरे पास इतना अच्छा फ्री टाइम होता है, मेरे पास बाइबल पढ़ा रहता है, लेकिन मैं इतना दिलचस्पी नहीं लेता हूँ। इसलिए मैं प्रभु से माफ़ी भी माँगता हूँ वो चीज़ों के लिए। और कल प्रभु ने वो भाई से वजह हमसे बातें की, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु को धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर की प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो वचन है सच्ची में एक दूसरे के ऊपर प्रीति करना और अपना खुद का काम खुद करना, दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं लेने का। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हम इतने पापिष्ट और प्रभु को हम पहले मानते नहीं थे, लेकिन जो हमारा पिता परमेश्वर, उसने हमारे ऊपर पहले इतना प्रीति किया, उसको अंत नहीं है, क्योंकि उसने अपना एकलौता एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना सूली पर अपना खून बहा के हमारे पापों का उद्धार किया है। ये सच्ची है और ये इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं इसीलिए ये विश्वास करने के लिए वो पात्र है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह में हम सभी भाई बहनों को, हमको प्रभु यीशु मसीह ने हमारा पापों को क्षमा किया है। इसीलिए वही जो क्षमा है और जो हमारे पापों के लिए हमारा वही बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रीति है। अभी आगे जाकर हमने जैसे हमको प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया खुद का काम खुद करने का, दूसरे के काम में दखलंदाजी लेने का नहीं है। लेकिन हमारा जो दैहिक स्वभाव है वो चुप नहीं होता और कभी भी उठ के दूसरे का तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ऐसा होता है। लेकिन इसलिए हम हर समय हर टाइम में हम प्रभु यीशु मसीह जो आत्मा है वो आत्मा में रहने का कोशिश करना चाहिए। एक वचन में बताता हूँ, लूका सुवर्तमान 21 अध्याय और 34 और 35 वचन। परंतु तुम्ही आपणाला सांभाळा, नाहीतर कदाचित गुंगी व मद्यपीपणा व या हल्लीच्या आयुष्याच्या चिंता याकडून तुमची अंतकरणे जड होतील व तो दिवस पाशासारखा अकस्मात तुमच्यावर येईल, कारण तो सर्व पृथ्वीच्या पाठीवर राहणाऱ्या सर्वांवर तसाच येईल। यास्तव तुम्ही सर्व होणाऱ्या गोष्टी चुकवायला व मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहायला सबल असावे, म्हणून सर्व प्रसंगी प्रार्थना करीत जागे रहा। ये वचन ने एक्चुअली मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि जो प्रभु का वचन है एक दूसरे को प्रीति करना है और अपना काम करना है। लेकिन हम ये सब कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि हम स्वतः मतलब स्व में सेल्फिशपना इतना है कि हम उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। इसके लिए हमारा जो हृदय है जड़ हो जाता है और प्रभु का वचन सुनने के लिए हमको कभी अच्छा नहीं लगता। इसलिए प्रभु का वचन है, हमारा एक गोल है मनुष्याच्या पुत्रासमोर उभे राहायला सबल असावे। हमको सबको एक बार जवाब देना है, उसके सामने खड़ा होने का है। इसीलिए अभी हम जो समय मिलता है उसमें प्रार्थना करना और जागते रहना है। जागते रहना मतलब जो जैसे प्रभु का वचन हमको सुनाई देता है सेम वैसे ही करना है। और कल जो ब्रदर ने एक बात बताई, యోహాను सुवर्तमान 12 और 10 और 12 वचन, गव्हाचा दाना जमिनीत पडून मेला नाही तर तसाच राहतो आणि मेला तर पुष्कळ पीक देतो। ये वचन एक्चुअली मेरे हृदय में बहुत कार्य किया है।
जब भी हम प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु के सामने आते हैं, तो हम हमारे लिए जो हमारा स्वभाव है, जो नया मतलब जूना आदम जो पापिष्ट स्वभाव है, उसको हम मरना ही मरना है। जब तक हम उसको नहीं मरेंगे तब तक वो नया दाना जो है नया फल प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिन में हमारे लिए सब मैं भाई बहनों को मैं विनती करता हूँ, ये हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसा कार्य करना चाहिए कि हम खुद मरना चाहिए, और वो खुद मरने से दूसरे को उसका जीवन लाभदायी होना चाहिए। यही प्रभु का आज का इच्छा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक मौका दिया, परमेश्वर के जो कल गवाही सुनी थी उसके विषय में बात करने के लिए। कल जो ब्रदर गवाही दे रहे थे, उनकी गवाही के द्वारा मुझे मेरे जीवन में बहुत प्रोत्साहन मिला। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और जो वो उन्होंने कितने मुश्किल से इस विश्वास को पाया और कैसे उन्होंने उनका जीवन बिताया, उसमें कितने ईमानदारी से उन्होंने सब कुछ किया। वो सब बातें करने के समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे कितने आसानी से इस विश्वास को पाने का हुआ, और कितने लापरवाही से कितने साल ऐसे ही व्यर्थ किए मैंने। बहुत इस बात का मुझे दुख हुआ कि जो लोगों को बहुत मुश्किल से जो विश्वास उद्धार पाते हैं बहुत सारे रुकावटों के बीच में, वो कितने ईमानदारी के साथ, कितने बहुत फुर्ती के साथ कैसे परमेश्वर की विश्वास से योग्यता में कैसे आगे बढ़ते जाते हैं। और मेरे जैसे लोग जिनको विश्वास जो है, उद्धार जो है अपने जो पीढ़ी से मिलती आती है, वो कितने लापरवाही से अपने जीवन को पूरा एकदम लापरवाही से बर्बाद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे जो दिन जो बर्बाद किए, उन विषयों में परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया और मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगा उन बातों के लिए। और उन्होंने जो बात कही अय्यूब की जीवन के बारे में, और जैसे कि उनके जीवन में कौन सी भी परिस्थिति आई, बुरी इतनी बदतर से बदतर परिस्थिति आई, तो भी वो जो है परमेश्वर के जो शैतान जो है उसके विषय में कोई आनंद नहीं ले पाया। तो मुझे ये सीखने को मिला कि मेरे जीवन में भी बुरी से बुरी, बदतर से बदतर परिस्थितियां आए तो भी मुझे शैतान को जो है मेरे जीवन के बारे में आनंद मनाने को नहीं देना है। कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखकर परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ठहरने के लिए परमेश्वर के वचनों को पालन करते हुए मुझे चलना है, और शैतान को कोई भी अवसर मेरे जीवन को देखकर हंसने का नहीं देना है, उसको लज्जित करना है। और परमेश्वर की स्तुति हो, उन भाई के द्वारा उस वचन को सुनने मिला, और मेरे परिवार को पूरा उस वचन के द्वारा, उनकी गवाही के द्वारा, उनके जीवन को देखकर बहुत प्रोत्साहन मिला और आशीष मिला। आमीन। आमेन. प्रभूला स्तुती, धन्यवाद देतो. आजच्या वचनाबद्दल आभार मानतो, कारण काल सुद्धा ब्रदरने जे वचन बोललं, ब्रदर कत्तीवेरांचं वचन मी ऐकलं, त्याबद्दल मी प्रभूचे आभार मानतो. करून त्यांची साक्ष जी आहे ते फार मला त्यांची साक्ष आवडली. कारण त्याने प्रथम काय सांगितले की गव्हाचा दाणा जमिनीत मोडून मेल्याशिवाय तो एकटा राहू शकत नाही, मरण आहे त्यात. मग ब्रदर जॅक पुननचं मीटिंग नसरापूरला असताना ब्रदरने मला हेच वचन सांगितलं. कारण मीटिंग संपल्यानंतर मी ब्रदर जॅक पुनन यांना आम्ही भेटायला गेलो, त्याच ब्रदरने हेच मला वचन सांगितले की मेलं पाहिजे, मेल्यानंतरच आपल्याला जीवन मिळू शकते. कारण ते कत्तीवेरांचं ऐकताना माझी त्यावेळी स्थिती तशीच होती, पण देवाने त्यांच्याकडून ते मला वचन मिळालं. आज त्या वचनावर प्रभूने मला उभा केलेलं आहे. कारण आमची परिस्थिती कसली असू दे, पण सर्व काय प्रभूला शक्य आहे. प्रभू आम्हाला त्यातून उभे करण्याकरता प्रभू आम्हाला खरोखर तो मार्ग दाखवतो. आणि आज जे वचन ऐकलं त्या वचनाप्रमाणे आम्ही प्रीती करण्याकरता प्रभूने आम्हाला शिकवलेलं आहे. परंतु आमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये आम्ही दुसऱ्याच्या कामामध्ये ढवळाढवळ करणं किंवा दुसऱ्याचं दुष्ट ऐकणं हे आम्ही नाकारलं पाहिजे. हे सत्य वचन आहे. आज प्रत्येक ठिकाणी तेच आहे. काय करतात, दुसऱ्याच ऐकण्यामध्ये त्यांना फार रस असतोय, स्वतःच नाही. म्हणून आज आम्ही स्वतःच काम करून, स्वतःच कष्ट करून, स्वतः आम्ही काय प्रभूसाठी
एक साक्षी जीवन जगलं पाहिजे. म्हणून मी प्रभूला स्तुती करतो, कारण आज सकाळी मी इपिस्कारस पत्र याचा पहिला अध्याय वाचत असताना, इपिस्कारस पत्र पहिला अध्याय आणि वचन आहे इपिस्कारस पत्र पहिला अध्याय याचं 4थं वचन आहे. म्हणजे जसे त्याने जगाचा पाया घालण्यापूर्वी त्याच्यामध्ये आम्हाला या करता निवडले की आम्ही प्रीती त्याच्या समोर पवित्र आणि निर्दोष असावी. आम्ही जगाचा पाया घालण्यापूर्वी प्रभूने आम्हाला निवडलेला आहे, म्हणून त्याच्या समोर आम्ही पवित्र आणि निर्दोष असायला पाहिजे. कारण देवाने ज्यावेळेस आम्हाला निवडलं, आमच्या विचारामध्ये असं असायला नाही पाहिजे की मला देवानं एकट्याला प्रगट केलं, पण नाही, देवानं कोणा तर व्यक्तीद्वारे माझं तारण केलं. आणि तारण माझं कशासाठी आहे की आम्ही निर्दोष आणि पवित्र असावं. कारण निर्दोष आणि पवित्र आम्ही असण्यास करता आम्ही त्याला खटपट केली पाहिजे. कारण जुन्या काळामध्ये सलमोन राजाने एक न्याय केला. काय न्याय केला? दोन स्त्रिया होत्या, त्यातली एक मुलाला घेऊन काय केले, आपल्या अंथरुणात मरण पावली होती, आणि दुसरा मुलगा काय होता, जिवंत होता. मग ती दुसरी खोटी बाई काय म्हटली, हा जिवंत आहे, माझाच मुलगा आहे. त्यावेळेस सलमोनाने एक न्याय केला. काय न्याय केला? ती जास्त बडबडणारी, आक्रोश करणारी, तिचं काय ऐकलं नाही, पण एक शांत होती. तिचं काय विचार होते की जो ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणी आशीर्वादित असू दे, त्या ठिकाणी शांतीने राहू दे. मग सलमोन न्याय काय केला, एक तलवार आणा आणि 2 भाग करूया. त्यावेळेस खऱ्या आईचं अंतःकरण काय झालं, कळवळ आला. कळवळ यानं ती खरी आई अंतःकरण आई काय म्हणली, तिच्याकडे आहे तर तिच्याकडे राहू दे, पण सुखी राहू दे. पण ती खोटी काय म्हटली, नाही, त्याला मधोमध कापलंच पाहिजे. आज हे खरे सत्य मंडळीचं हे दर्शक आहे. आज आम्हाला खऱ्या मंडळीमध्ये आम्हाला एकत्र आणलं असताना आम्ही प्रभूच्या हातामध्ये सर्व न्याय द्यायला पाहिजे. त्यावेळेस सलमोन न्याय दिला काय, जी खरी आई होती त्या खरी आईच्या हातात त्या बाळाला सोपवून दिलं. आज आम्ही खरोखर आतापर्यंत आमच्या ज्ञानाने आम्ही भडकलो, परंतु प्रभूने आम्हाला सोडलं नाही. प्रभूने आम्हाला योग्य मंडळीमध्ये आणलं, म्हणून प्रभूची आम्ही स्तुती करतो. कारण इपिस्कारामध्ये पत्रामध्ये सांगितलेलं आहे की शांतीच्या बंधनाने तुम्ही आत्म्याचे ऐक्य राखायला जाता. आम्हाला शांतीच्या बंधनाने आम्ही ऐक्य राखलं पाहिजे, आणि ऐक्य मंडळीमध्ये आहे. मंडळीतील पवित्र जनाबरोबर आम्ही ऐक्य राखण्याकरता प्रभू आम्हाला सहाय्य करू. प्रभूला स्तुती असो. आमेन. प्रभूला स्तुती असो. प्रभूला स्तुती असो. आजच्या वचनाबद्दल मी प्रभूचे आभार मानते. खरोखर प्रभूचं आजचे वचन आम्हाला लाभदायक झाले. पहिले तेसलोनी याचा 4था अध्यायाचं 9 आणि 10 वचन, खरोखर आमच्या जीवनामध्ये आम्ही भावावर प्रीती करावी, तसे आम्ही एकमेकावर प्रीती करायला आम्ही देवापासून शिकलेले आहे. आणि आम्ही स्वस्थ राहण्याची आणि आमचे कामकाज करण्याची गरज आहे. प्रभूने आम्हाला शांतीने राहायला शिकवलेले आहे आणि आपापलेच कामकाज करावे. अधिक आम्ही प्रीतीमध्ये वाढावे. प्रभूची प्रीती आमच्यामध्ये, आमच्या हृदयामध्ये आगापे अशी प्रीती असावी. त्या प्रीतीने आम्ही भरून जीवन जगायला पाहिजे. आम्ही गर्विष्ठ न होता प्रीतीने भरलेले असण्यासाठी प्रभू आमच्यामध्ये कार्य करावे. आणि आम्ही आमच्या स्वतःच्या गोष्टीच आम्ही पाहाव्या. आम्ही इतरांच्या गोष्टीमध्ये आम्ही क्युरियोसिटी कधी घेऊ नये. यासाठी प्रभू आम्हाला त्याची कृपा आणि त्याची दया पुरवो. यामध्ये अनेक वचन मला स्पर्श झाले की यशाया याचा 30वा अध्याय आणि 21 वचन, आणि जेव्हा तुम्ही उजवीकडे फिराल आणि जेव्हा तुम्ही डावीकडे फिराल, तेव्हा तुझे कान तुझ्या मागे वाणी ऐकतील. ती म्हणेल की हाच मार्ग आहे, यात तुम्ही चाला. आम्ही त्याच्या मागे त्याची वाणी ऐकून चालावे, आणि तोच आमचा खरा मार्ग आहे. त्या मार्गामध्ये चालण्यासाठी प्रभू आम्हाला त्याची कृपा आणि त्याची दया पुरवो. सदैव आमच्या जीवनामध्ये आम्ही शांत असावे. प्रभूचं वचन सांगते की शांत व्हा आणि जाणा की मीच देव आहे. त्या देवाकडे पाहण्यासाठी, खरोखर त्याच्यावर अवलंबून जीवन जगण्यासाठी प्रभू आम्हाला त्याची कृपा आणि त्याची दया पुरवो. त्या बोललेल्या वचनाबद्दल प्रभूचे आभार मानते. आमेन. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर बहुत महान है, उनके अनुग्रह से ही मैं आज हूँ।
खासकर ये हफ्ते में मेरे परमेश्वर ने कुछ सिखाया है। तो आयुब के चैप्टर 34 में 34 में 21 पढ़ता हूँ। क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। तो ये वचन से परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन देते हैं कि मैं परमेश्वर जो हर जगह हमें मौजूद है, वो हमें देखते रहते हैं। जैसे दाऊद भी भजन संहिता 139 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर हमारा उठना बैठना भी जानते हैं, हमारा सोचना जानते हैं, हमारा चलना जानते हैं, हम क्या करते हैं। मतलब परमेश्वर का आत्मा जो है हर जगह मौजूद है, उनके उनके आत्मा से हम भाग नहीं सकते। और अंत में भी दाऊद भी प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे अंदर क्या चिंताएं हैं, मेरे अंदर कौन सी बुरे काम है, उतना कि वो मुझे दिखा जिससे कि मैं उनसे छुटकारा पाऊँ। तो इन दिनों में परमेश्वर ने क्या किया, आज जब मैं जॉब पे था, काम पे, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक दिन मैनेजर प्रोपराइटर था तो मुझे बुलाया कि राजू आप पूजा नहीं करते क्या? तो मैं बोला उनको कि नहीं मैं पूजा नहीं करता, क्यों? क्योंकि गॉड विल पनिश मी। मैंने उनको बोला परमेश्वर गॉड विल पनिश मी, परमेश्वर मुझे पनिश मी। तो बोला गॉड तुमको पनिश करेगा? अच्छा ओके, तो सब गॉड तो एक ही है। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं, गॉड इज टोल्ड मी दैट आई एम द वे ट्रूथ एंड द लाइफ। तो उनके सामने एक अच्छा, वो लोग बहुत हंस रहे थे, बट आफ्टर दैट सब स्मूथली गया। एक बार और एक दिन क्या उन्होंने बोला था कि राजू आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो मैंने बोला मैंने फर्स्ट सैमुअल 16 में 7 मैंने बताया कि परमेश्वर जो है, मैन लुक्स आउटवर्ड अपीयरेंस, गॉड लुक्स इनर अपीयरेंस। मतलब परमेश्वर जो है हमारे हृदय को देखते हैं। तो उनके बाद उनका भी जब जब हम परमेश्वर के वचन से सामना करते हैं तो हमारे पवित्र आत्मा बोलने देता है कि हमें बोलना चाहिए, उस समय बोलना चाहिए। जब जब भी हमें परमेश्वर नहीं बोलते उस समय शांत रहना चाहिए। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे चाल चलन को देखते रहते हैं, वो हमारा परीक्षा भी करते हैं, हमें मौका भी देते हैं। वो समय आता है जब हमें बोलने के लिए देते हैं, जब समय नहीं रहता है तो हमें परमेश्वर बोलते हैं शांत रहो, चुपचाप रहो। तो चुपचाप रहने भलाई है, क्योंकि उसमें आनंद भी है और परमेश्वर हमें बात भी करता है और हमें मौका देता है कि हम किन बातों में बदलना चाहिए। क्योंकि जहाँ अधिक बातें होती है वहाँ अपराध होता है, परंतु जो चुपचाप रहता है वो बुद्धिमान पुरुष है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। कल के जो टेस्टिमनी गवाही में जो परमेश्वर ने बातें की उसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। सचमुच में ब्रदर कदिरवन का जो गवाही सुनकर मैं शर्म से मेरा सिर झुक गया। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह उनके ज़रिए से काम कर रहे हैं और जो अपनी सेवकाई को उनके ज़रिए से पूरी कर रहे हैं, और ब्रदर कदिरवन भी जिस तरह से अपने आप को हलीम करके परमेश्वर के हाथ में जो सौंप कर परमेश्वर की सिर्फ मर्जी और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए ही जिस तरह से वो जीवन बिताते हैं, वो सोचकर फिर मैं अपने आप में देखी कि कितने सारे बहानों के पोटलियां लेके बैठी रहती हूँ मैं। जब भी कुछ परमेश्वर के राज्य या परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर जब भी कुछ बात होती है तो तुरंत एक बहाना, एक ऑलवेज देयर इज एन एक्सक्यूज। तो जब वो परिस्थिति जिस सतावट से जा रहे थे उसमें से जो सलाह उनको कि तुमको सतावट से निकलने के लिए एक मार्ग परमेश्वर बनाएगा, और उन्होंने तुरंत उस पर एक्ट नहीं किया, लेकिन उस सलाह को लेकर चर्च के कलीसिया के एल्डर के पास जाकर उन्होंने बताया और जिस तरीके से उनको समझाया कि नहीं ये ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन गेहूं का जो दाना है वो जब तक मरेगा नहीं तो परमेश्वर का सिद्ध मर्जी जो है वो कैसे पूरी होगा। और ये सारी जो बातें हैं, शरीर जो है हमेशा अपने कंफर्ट लेवल के बारे में सोचता है, तो तुरंत जैसे वो वचन आया था कि बच निकलने का मार्ग परमेश्वर दिखाएगा, तो दैट इज सो कंफर्टिंग। लेकिन उसके विपरीत में परमेश्वर का एक और एक वचन, सो वचन के साथ जब हम मिलाते हैं तब परमेश्वर की सिद्ध मर्जी समझ में आती है। और जब परमेश्वर ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, लेकिन तुम जब तक अपने आप के लिए जमीन यू विल नॉट डाई, तब तक परमेश्वर की मर्जी कैसे पूरी होगी। तो सिर्फ एक वचन को पकड़कर अपने शरीर को, मेरे मन को वो अच्छा लग रहा है इसके लिए मैं ऐसा ना चलूं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रखकर प्रभु ये ऐसे सोच आ रहा है लॉर्ड, लेकिन आप क्या बोल रहे हो।
सो उस वचन के लिए जो है बैलेंस्ड वचन जो है परमेश्वर खुद अपने वचन में से निकाल कर अपनी मर्जी को सिखाता है। ये समझने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया है। और जिस तरह से परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है, और जो उनका जो अकेलापन है, उनका जो बीमारी है, ये सारी कोई भी चीज ब्रदर और मसीह यीशु के बीच में नहीं आता है, लेकिन सिर्फ उन्होंने बताया कि सिर्फ पाप एक चीज है जो परमेश्वर से अलग करता है। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों को बताया कि कितने एरियाज में और परमेश्वर और अधिक वो खुद इच्छा रखता है कि हमारे जीवन में कार्य करेगा। आज के मैसेज से भी मुझे सीख मिली है कि मुझे चुप रहना है, आई हैव टू बी क्वाइट। जैसे परमेश्वर चला रहा है सिर्फ उसी में ध्यान देना है, बाकी बेकार की डिस्ट्रैक्शंस में ध्यान न देते हुए सिर्फ परमेश्वर की मर्जी करने के लिए ही मुझे अपने आप को देना है। परमेश्वर की स्तुति हो। Hello, can you hear me now? Hello, Yes, brother. can you hear me? Yes, brother. This clear? Little bit problem is there, but okay. Okay. So anyway, we don't have much time, so I'll complete what I said. That last part is that we must work with our own hands. The Apostle Paul said, 1 Thessalonians chapter 4, verse 11. तो पहला तसलोनी 4 अध्याय के 11 वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, अपने अपने हाथों से हमें कमाने के लिए प्रयत्न करना है। So when we work with our own hands, God wants us to be very hardworking, not lazy. तो जब हम अपने हाथों से काम करते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बहुत मेहनत करने वाले हो, ना कि आलसी हो। So when we are remaining idle, we fall into all sorts of sins. और जब हम खाली से बैठे रहते हैं तो हम बहुत सारे पापों में गिर जाते हैं। In English, there's a proverb that says, "Idle mind is a devil workshop." तो इंग्लिश में, अंग्रेजी में एक कहावत है कि खाली जो दिमाग है शैतान के लिए कामकाज का जगह है। So it is the devil puts all sorts of thoughts into our minds when we are idle and we don't do hard work. और शैतान जो है हमारे दिमाग में बहुत सारे ख्यालों को डालता है जब हम कुछ एकदम चुपचाप रहते हैं और मेहनत नहीं करते हैं तभी। So we have to be busy doing work, whatever God tells us to do, and not remain idle. तो हमें जो भी काम परमेश्वर हमसे करने के लिए कहते हैं उन बातों को करते रहना है, व्यस्त रहना है, खाली नहीं बैठना। We have to work so that we can feed ourselves and our family and look after our family needs. तो हमें काम करना है ताकि हमारे परिवार के लिए और उनकी जारी जरूरत है उसको हम पूरा कर पाए। The Apostle Paul is such a good example. प्रेरित पौलुस जो है इतने अच्छे उदाहरण है हमारे लिए। Even though he was such a great apostle who wrote so many letters and planted so many churches, still he worked with his own hands and supported himself making tents. तो जो प्रेरित पौलुस इतने महान थे, इतनी कलीसियाओं की स्थापना की थी, इतने बड़े बड़े काम किए, तो भी उन्होंने अपने हाथ से मेहनत करके अपने आप को संभाला, अपनी जरूरतों को पूरा किया। Day and night he was working. रात दिन वो काम करते थे। The day he used to work and the night he used to give the message. दिन में वो काम करते थे और रात को जो थे संदेश देते थे। And he used to support other people also. और दूसरों लोगों को भी वो सहायता देते थे। He was a rich man because his father was very rich, but still he worked hard. वो धनी व्यक्ति थे क्योंकि उनके पिताजी तो जो थे वो धनी थे, फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया। That is why he encouraged all the believers there also. You all also should work hard and don't be idle. इसीलिए वहाँ के जो विश्वासी हैं उनको भी ये प्रोत्साहन वो देते हैं कि तुम सभी लोग जो है मेहनत से काम करो, खाली और आलसीपन पे मत रहो। In 2 Thessalonians chapter 3, दूसरा तसलोनी 3 अध्याय verse 11. 11 वचन। He says, "For we hear that some among you are leading an undisciplined life, doing no work at all, but acting like busybodies." हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। So when we are idle, what happens? Then we like to get, it is related to all gossip and being busybody in other people's affairs. और जब हम खाली बैठते हैं तो क्या होता है, हम दूसरों के जो कामकाज है, दूसरों के विषयों में ज्यादा दखल अंदाजी करने लगते हैं। The busybody is also being like a small devil. तो ये ऐसे एकदम व्यस्त रहना मतलब एक शैतान की जैसा सोच है।
The devil is a person who is always idle. तो शैतान ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा खाली बैठता है। Then God told him, told the devil, where were you? तो परमेश्वर शैतान से पूछते हैं, तुम कहाँ थे? I was roaming here and there. तो वो कहने लगा, मैं यहाँ वहाँ घूम रहा था। So that is the devil's work, and then people also behave like the devil. They also roam here and there and talk about it from here and there. तो शैतान का यही स्वभाव है, और जो लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, वो भी ऐसे लोग शैतान के स्वभाव वाले हैं। So we have to avoid people. They create a lot of trouble because the devil speaks through them. तो ऐसे लोगों को हमें नजरअंदाज करना है। वो हमेशा परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि शैतान जो है इनके द्वारा काम करते हैं। The Apostle Paul said to avoid that, do hard work, and if you don't want to do the hard work, don't eat. तो प्रेरित पौलुस कहते हैं, ये सब तुम हटा दो अपने जीवन से और मेहनत करो। अगर तुम मेहनत नहीं करना चाहते तो तुम प्रचार मत किया करो। नहीं, खाना मत खाओ। खाना मत खाओ। Those who don't work should not eat. और जो काम नहीं करते वो खाओ मत। They should fast. उन्हें उपवास करना चाहिए। This is especially good for all Christian workers, that they should do hard work and earn their own living, and then they can eat. तो ये सारे जो मसीही सेवके हैं, उनके लिए अच्छी बात है कि उन्हें एकदम मेहनत से काम करना है अपने लिए, और फिर खाना चाहिए। And then we will be a good example to all the people around us. फिर हम हमारे चारों तरफ के लोगों के लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। Even when we are old and retired, we must do hard work, schedule our time so that we don't waste time. तो हम यदि भी वयोधि अवस्था में हो या रिटायर हो चुके हो, तो भी हमें जो है बहुत मेहनत से काम करना है। हमें खाली नहीं बैठना है, अपने समय बर्बाद नहीं करनी। Hard work is very good for the health and also for our mental health and physical health and spiritual health. तो प्रयत्न करना हमारी जो है मन की सेहत के लिए, हमारे आत्मिकता की सेहत के लिए, हमारी शारीरिक सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। We will not think that now hard work is only for young people, and then I want to relax as early as possible and enjoy life. तो हमें ये नहीं सोचना है कि मेहनत करना सिर्फ जवान लोगों के लिए है। अभी मुझे अपने जीवन में रिटायर लेना है और आराम से सुखदायक जीवन बिताना है। In Hindi it says aram is haram. आराम हराम है, ऐसे हिंदी में कहा जाता है। So Jesus told about the man who was so rich. He said he became so rich that he said now I don't have to work at all. तो यीशु मसीह ने एक धनी व्यक्ति के बारे में बताया कि वो इतना धनवान हो चुका था, तो ये सोचने लगा कि अभी मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। He was enjoying life. वो अपने जीवन का आनंद उठा रहा था। And suddenly he got a heart attack and died. और फिर एकदम से उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गए। When we do work, then we will remain healthy also physically. और जब हम काम करते रहते हैं तो अपने शारीरिक सेहत में भी बहुत सेहतमंद रहते हैं हम। And then we'll have no time to keep on bothering about other people's affairs. और फिर हमारे पास समय नहीं रहेगा दूसरे लोगों के जीवन में क्या हो रहा है उसमें दखल अंदाजी देने की। This happens to retired men and also ladies whose children have grown up. Then they don't have much work to do, so they keep on gossiping and backbiting, and they keep on bothering about other people's affairs. तो ये सारी जो चीज है, जो रिटायर हो चुके हैं और महिलाएं हैं जिनके जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो करते हैं, जो हमेशा गपशप करते रहते हैं और दूसरे लोगों के जीवनों में दखल अंदाजी करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं रहता करने के लिए। They should do their own work in their house. There is so much of work for the kingdom of God, but they are bothering about other people's work and they don't do their own work. तो उनके घरों में इतने काम रहते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए भी बहुत काम करना रहता है, फिर भी वो अपने काम से मतलब नहीं रखते, दूसरे लोगों के जीवन में दखल देने की कोशिश करते हैं। When we are lazy, God doesn't like lazy people. और जब हम आलसी रहते हैं तो परमेश्वर आलसी लोगों को पसंद नहीं करते। Jesus told about that man who had only one talent, said, "You wicked and you lazy slave." जिसके पास एक तालंत था, उसको यीशु मसीह ने कहा कि ये दुष्ट दास और आलसी दास। That's why all children also should work hard in their studies. इसलिए सारे जो बच्चे हैं उनको भी अपनी पढ़ाई में बहुत ही मेहनत से पढ़ना चाहिए। Then we won't get into all bad things. फिर हम सारी बुरी बातों में नहीं पड़ेंगे। We won't read bad books. We won't have time to watch the internet or play games. First, do your work, hard work, and then we will be safe, and then we will enjoy our sports and everything else. फिर हम जो है पहले अपने आप को मेहनत करना है, पढ़ना है, फिर जो समय रहेगा उसमें हम जो है दूसरी चीजों में बाकी चीजें उसका आनंद ले सकते हैं। Same thing with sisters and brothers and older people. We have to do the work that God has told us to do. वही बात है जो भाई है, बहन है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ भी परमेश्वर ने जो हमें काम करने के लिए दिए हैं उन कामों को पहले हमें करना है। Then God will prosper us. फिर हमें परमेश्वर जो है बढ़ाएंगे।
So this is this should be our ambition, that to learn to be quiet. तो हमारा मकसद यही होना चाहिए, चुपचाप रहना, to mind our own business, हमारे कामकाज को देखना सिर्फ, and to work with our own hands. फिर अपने हाथों से प्रयत्न करना, काम करना. So this is what the Apostle Paul tells us. यही प्रेरित पौलुस हमसे भी कहते हैं. So we must increase, and then God can bless us tremendously. और ऐसे हम बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करेंगे. And we can be a blessing to others also. और हम दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बन सकते हैं. That is what Christianity does to people. यही मसीही जीवन जो है लोगों के जीवन में करता है. Jesus also was so hardworking. यीशु मसीह भी बहुत मेहनती थे. 30 years he worked very hard as a carpenter. और 30 साल तक एक सुतार की नाई उन्होंने बहुत मेहनत की. And after that, for 3.5 years, he worked so hard day and night. और बाकी के 3.5 साल उन्होंने रात दिन बहुत मेहनत से काम किए. And God supplied his needs. और परमेश्वर ने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया. He didn't live to make money. वो पैसे बनाने के लिए नहीं जिए. But God provided all his needs and the needs of the disciples. तो परमेश्वर ने उनकी और उनकी चेलों की जितनी भी जरूरतें हैं सब कुछ उन्हें दे दिया. So this is what, when we make our ambition to follow Jesus Christ, then our lives will be fruitful for him. जब हम हमारा मकसद परमेश्वर का पीछा करने का हम रखते हैं तो हमारा जीवन जो है फल से भर जाता है. So living for Jesus means this. और यीशु मसीह के लिए जीने का अर्थ यही है. Learning to be quiet. चुपचाप रहने के लिए सीखना. So that God can speak to us. ताकि परमेश्वर हमसे बातें कर पाए. To mind our own business and do our own work. हमारे जो काम है उस पे ध्यान देना और वो काम को करना. And do our work well and hard. और हमारे जो काम है उसे पूरे यत्न और प्रयत्न से करना. May the Lord help us as we walk, as we follow Jesus. परमेश्वर हमें सहायता करेंगे जैसे ही हम यीशु मसीह का पीछे करते जाएंगे. Let us pray. प्रार्थना करेंगे. Father, we thank you that you have spoken your word to our hearts. परमेश्वर धन्यवाद कि आपने अपने वचनों के द्वारा हमारे हृदय से बातें की है. Lord, please speak to us when we are regarding your word, whenever we are in need, Lord. परमेश्वर हमसे बातें कीजिए जब भी हमें आपके वचनों की जरूरत हो. And help us not to obey it. और परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम उसका आपके आज्ञा का पालन करें. Bless every brother and sister in the church. कलीसिया के सारे भाई बहनों को आशीष कीजिए. And help us to live for you. और हमें सहायता कीजिए कि हम आपके लिए जिए. Amen. So the meeting is over. I encourage you, brothers and sisters, to read the Bible. सभी को प्रोत्साहन देता हूँ भाइयों बहनों सभी लोग बाइबल को पढ़ें. We heard about Kathiravan, how when he was in school, only late school, how he had a great interest to read the Bible, and even though the people his father tore the Bible, still he wanted to read the Bible. तो हमने कल कदिरवन ब्रदर का गवाही सुना है कि जब वो स्कूल कक्षा में पढ़ रहे थे तभी भी उनको बाइबल पढ़ने में कितनी दिलचस्पी थी. लोगों ने कितना रुकावट किया, उनके पिताजी ने उनके बाइबल को फाड़ भी दिया, तो कैसा वो पढ़ने के लिए इतनी दिलचस्पी से पढ़ते थे बाइबल को. And because he was faithful, God could really bless him and use him. और वो इतने विश्वास योग्य थे इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया और उन्हें उनका उपयोग किया. And he has grown spiritually. और वो आत्मिकता में बढ़ते गए. So we also make a Bible reading program, and we have to read the Bible. तो हमें भी इस बाइबल का रीडिंग प्रोग्राम को पीछा करना है और हमें बाइबल को पढ़ना है. Especially the New Testament. खास करके नया करार. So this month of September, we were reading the Old Testament book of Job. तो सितंबर के महीने में हम अय्यूब की किताब पढ़ रहे थे पुराने नियम से. The book of Luke, almost we have completed it now. लूका का किताब बहुत करके हमने पूरा कर दिया है. And the book of Romans and 1 Corinthians. रोमियो और पहला कोरिन्थी की किताब. So our plan is that we must finish the epistles of Jesus Christ at least 3 times a year. तो हमारा योजना यही है कि यीशु मसीह की जितनी भी पत्रियां हैं वो हमें साल में 3 बार पूरा करना है. That is from Romans to Jude. वो रोमियो से यहूदी तक है. Because this is what the Holy Spirit is speaking to the disciples of Jesus Christ. तो क्योंकि ये जो है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के चेलों के संग बात कर रहे हैं. The Gospels, Matthew to John, and then Acts and Revelations, we will read it 2 times a year. मत्ती से लेके यूहन्ना तक और फिर प्रकाशित वाक्य और प्रेरितों के काम, ये जो है साल में 2 बार हम पूरा कर सकते हैं. And then the Psalms and Proverbs also 2 times a year.
और भजन संगीता और नीति वचन भी 2 बार साल में। And the Old Testament we will read once a year. और पुराना करार जो है हम साल में 1 बार पूरा करेंगे। If you are so busy that you cannot read much, so at least read the New Testament, the Gospels and the Epistles. अगर आप बहुत व्यस्त हैं, पढ़ने के लिए समय नहीं है, तो एटलीस्ट आप नया नियम और जो पत्रियां हैं उनको पढ़ लीजिए। So we pray that God, we will do this the rest of the time, that when we do these things, we don't have other time to waste. तो अगर हम ये सारी चीजों को करते रहेंगे तो हमारे पास खाली बर्बाद करने के लिए समय नहीं रहेगा। So for next month, we will start our new program from the book Gospel of John and then 2 Corinthians and the Epistles. So I will announce it 1 or 2 days in a few days time. तो अगले महीने हम जो है नया जो योजना है बाइबल पढ़ने का वो बनाएंगे, वो अगले महीने उसका प्रचार किया जाएगा। So stick to a small discipline in the morning, afternoon, and evening. Keep some specific time, 10 or 15 minutes, to read the Word of God. तो एक अनुशासन में हर एक दिन को बिताइए, एक 10-15 मिनट परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए समय को निकाल कर रखिए। So may the Lord all bless us and His grace be upon us. So goodbye and good day, everybody. God bless you.